Welcome to all in Gate Plus. Today our topic is block diagram as well as signal flow graph. By using these two, we can find the transfer function, closed loop transfer function. Okay. You can find the closed loop transfer function by reduction of block or by using the Masson-Gain formula. Masson-Gain formula we can discuss later on, but first we have to discuss here block diagram. And what is the block diagram here? It is the pictorial representation of the system from input to output. Okay. And one thing is important in the block diagram. This one is valid for linear as well as non-linear. And this one is block diagram of any system is not unique. Okay. We can represent two or three way. That is depends upon the how we are representing here. Okay. Then first, suppose we have a RC circuit here. If it is RC circuit here, then how we can represent the here block diagram? First we have to find the closed transfer function, that is V naught S upon VIS. Suppose if I write the capacitor in impedance form, then how we can write? That is 1 upon CS. Apply here voltage divider rule. Then what is the voltage divider rule? 1 upon CS. That is what? जिसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है 1 अपॉन सी एस एंड नेक्स्ट 1 अपॉन सी एस प्लस आर टोटल रेजिस्टेंस इनटू अप्लाइड वोल्टेज वी आई एस, दैट इज वी नॉट एस इक्वल्स टू दिस वन. देन इफ आई वांट टू राइट हियर वी नॉट एस अपॉन वी आई एस, दैट इज व्हाट वी कैन राइट हियर 1 अपॉन आर सी एस प्लस 1. व्हाट वी कैन राइट हियर आर सी एस प्लस 1. And if I represent here RC equals to tau, that is time constant, then how we can write here 1 upon tau S plus 1 here. Clear? Here power of the S is 1 means order is 1. And what is the meaning of order 1 means? This order 1 means what? A differential equation which differential coefficient is order 1, or we can say here there is the one storage element, independent storage element used in the circuit. Okay, why I am saying that here independent storage element means suppose we have a circuit like that and there is another inductor in parallel, then we have to assume as 1 here. We not assume here 2 here. Okay, then this one is the independent storage element. We can say here if the power of S is there is the one independent storage element. Okay, that is capacitor. Capacitor inductor are the storage element here. Okay. How we can represent the using the block diagram here? Suppose if I represent the current is IS and V naught, then IS equals to what we can write? IS equals to VIS minus V naught S upon what? R. And next, what is the value of V naught S? V naught S equals to 1 upon CS into IS. It is clear? Okay, this one is the IS. IS equals to, suppose current is flowing through input to output, means we can say VI input voltage is greater than output voltage. Then we can write here VI minus V naught upon R, that is equals to IS. How we can represent using the block diagram here? Suppose we apply the VIS here and there is summer and V naught S, that is minus here. Suppose this is V naught S here, output voltage. And there is no any multiplication, means we have to use here यूनिटी फीडबैक. अब डिस्कस कर चुके हैं इसको यूनिटी फीडबैक, उसमें जो है पहले फर्स्ट टॉपिक जो फर्स्ट लेक्चर लिया था मैंने. ठीक है, फर्स्ट वन इज दिस वन इज व्हाट, यहाँ से क्या आएगा वी आई और यहाँ से क्या जा रहा है वी नॉट, तो यहाँ पे आएगा वी आई माइनस वी नॉट. अगेन इसको डिवाइड किससे करेंगे 1 बाई आर. अगेन 1 बाई आर से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा IS. IS में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन CS, that is converted to the V naught S. This one is also write as what? 1 upon, this one is also write as 1 upon tau S and unity feedback here. This one is V naught and this one is VIS, and if it is negative feedback here. Okay. Then how we can write here closed loop transfer function V naught S upon VI equals to, I already told you
if the GS equals to suppose P by Q and if it is unity feedback, then we can directly write P upon Q plus P. सपोज क्लोज लूप दिया हुआ है, उसमें से अगर ओपन लूप बनाना है तो डायरेक्ट न्यूमरेटर माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओपन लूप में. ठीक है, दिस वन इज कंडीशन फॉर यूनिटी फीडबैक. क्लियर. देन हाउ वी कैन राइट हियर वी नॉट एस अपॉन वी आई दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1. अगेन वी आर गेटिंग द सेम थिंग हियर. क्लियर. देन दिस वन इज द व्हाट, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन सिस्टम फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट हियर. क्लियर. ओके, एक चीज और डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, जैसा कि हमने जो है उसमें डिस्कस किया था फर्स्ट वाले चैप्टर में कि कैसे जो है हम स्टेडी स्टेट एनालिसिस करते हैं. ठीक है, तो ये सब कहने का मीनिंग क्या है. जैसे यहाँ पे मैंने कई सारे ब्लॉक डायग्राम यूज होते हैं, जो सिस्टम हम बनते हैं हमारा ब्लॉक डायग्राम के थोड़ा सा बड़े होते हैं, उसमें कई सारे ब्लॉक यूज किए जाते हैं. उसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे कोई प्लांट है तो उसमें हर एक जो है एक प्लांट का एक स्पेसिफिक वर्क होता है, कुछ प्रोसेसिंग के लिए होते हैं, कुछ रिफाइनिंग के लिए अलग अलग काम होता है. तो हर एक को मैंने सिस्टम से रिप्रेजेंट कर दिया और ओवरऑल सिस्टम को क्या बोलेंगे, वही कहेंगे जो क्लोज लूप बनता है हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, तो हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, सपोज हमारे पास ब्लॉक डायग्राम दिया रहेगा, उसको रिड्यूस करेंगे, अगेन हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. बट ऐसा कुछ नहीं होगा इस लेक्चर में. पूरे लेक्चर में हम क्या देखेंगे, कैसे हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे बिना रिड्यूसिंग, विदाउट रिड्यूसिंग द ब्लॉक डायग्राम. ठीक है, तो पूरे जो है एक बार आपने देख लिया सब कुछ, तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, जितना हार्ड से हार्ड हो, मैं प्रॉमिस करता हूं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो 2 या 3 लाइन से ज्यादा होगा. ठीक है, रिडक्शन हम कभी नहीं करेंगे किसी क्वेश्चन में. ठीक है, हमेशा जो है एक मेथड, वही सिग्नल फ्लो ग्राफ का मैं आइडिया दूंगा. ओके, और डायरेक्ट उसी पे क्लिक करेंगे और बार बार हम रिडक्शन को बार बार हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे. ठीक है, कोई भी ब्लॉक डायग्राम का दिया हो या एसएफजी का दिया हो, कुछ भी दिया हो, उसका डायरेक्ट हम ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे. बट कुछ मैं कंडीशन बताऊंगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, और कभी भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं हो सकता और 1-2 लाइन से ज्यादा नहीं हो सकता, ये गारंटी है इसकी. ठीक है, ओके, तो यहां पे आ चुका है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. यहाँ नेक्स्ट वन इज, सपोज एक क्वेश्चन में गिवन है फिगर 1, 2. ठीक है, इनका जो है ट्रांसफर फंक्शन सेम है. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के हियर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. Then how we can find, this one is what, open loop C R, then C upon R equals to what, S plus 2 upon S plus 1. Again how we can write the closed loop transfer function, both are connected in parallel. जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे एक G1 है, इतना कुछ आइडिया होता है इस सबको है, G2 है, यहाँ पे समर लगा दूं. ठीक है, प्लस एंड प्लस हियर, देन वी कैन डायरेक्टली रिलेट विथ व्हाट, दोनों को ऐड कर दें, G1 प्लस G2. माइनस होगा तो माइनस कर देंगे, दैट इज C बाई R, G1 प्लस G2 हो जाएगा. तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन, इफ इट इज नॉट मेंशन एनी गेन देन वी हैव टू एज्यूम एज 1. देन व्हाट वी कैन राइट हियर, C बाई R इक्वल्स टू K अपॉन S प्लस 1 प्लस 1. ओके, देन K S प्लस 1 अपॉन S प्लस 1 here. Okay, if I correlate with the first transfer function, this one is equivalent transfer function, then how we can write here, K plus 1 equals to what, 2. Then what is the value of K, that is 1. K equals to 1. ठीक है, सब इजी चीज है, बस आइडिया होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट वन इज सिग्नल फ्लो ग्राफ. ठीक है ना, मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ अभी मैं इसलिए बात कर रहा हूं, एक्चुअली क्या है कि मुझे ब्लॉक डायग्राम के क्वेश्चन भी एसएफजी से करने हैं. ठीक है, इसलिए मैं सब दोनों एक साथ डिस्कस करूंगा और इसके बाद हम केवल क्वेश्चन करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे वो देखना है. ठीक है, कुछ हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है. एसएफजी, सिग्नल फ्लो ग्राफ, दिस वन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी अलजेब्रिक इक्वेशन दैट इज फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, एंड ब्लॉक डायग्राम इज वैलिड फॉर लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर, बट एसएफजी इज वैलिड फॉर ओनली लीनियर सिस्टम. ठीक है, नोड मीन्स व्हाट, ईच वेरिएबल दैट इज रिप्रेजेंट बाय द नोड. ठीक है, एसएफसी अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करेंगे तो हमेशा लीनियर की बात करेंगे, तो ध्यान रखना कि इसको क्या रिप्रेजेंट करें, दिस वन इज फॉर्म ऑफ लीनियर. ओके, नो प्रॉब्लम. तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन है, विच वन इज फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट द एसएफजी सिग्नल फ्लो ग्राफ, तो ध्यान रखेंगे दिस वन इज द लीनियर. व्हाट अबाउट दिस वन इज पावर इज 1,
देन सॉरी दिस पावर इज, पावर सबका क्या है 1 है तो ये क्या हो जाएगा लीनियर, यहाँ पे क्या है पावर 2 है, देन दिस वन इज नॉन लीनियर. ओके, नेक्स्ट व्हाट अबाउट दिस, again this one is linear, x4 x3 x2 x5, this one is linear. What about this, this one is non-linear, then this one is not represented by what, SFG. Why it is non-linear, because हम सिग्नल सिस्टम में डिस्कस करेंगे yt इक्वल्स टू xt प्लस एनी कांस्टेंट दैट इज ऑलवेज बी नॉन लीनियर. ओके, दिस वन इज द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, सिग्नल फ्लो ग्राफ इज द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, या बोले कि इनपुट से आउटपुट की तरफ हम मूव करते हैं इसमें. ठीक है, x3. What about this? This one is also non-linear because this one is the multiplication here, then power is 2. Okay, this one is also not represented by SFG. तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, गेट में नहीं आया हुआ है लेकिन आए हुए DRDO में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं. ठीक है, तो अबाउट द सिग्नल फ्लो ग्राफ, एंड दिस वन इज ऑल्सो वे टू फाइंड द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हियर. ठीक है, अब सिग्नल फ्लो ग्राफ में कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट इसमें. कौन कौन से पॉइंट है? नोट, ईच वेरिएबल रिप्रेजेंट एज व्हाट, नोड. फर्स्ट वन इज इनपुट नोड, आउटपुट नोड. मीन्स सपोज इफ आई वांट टू राइट हियर इनपुट नोड मीन्स सोर्स एंड आउटपुट नोड मीन्स सिंक. अ नोड विच इज द व्हाट, आउट गोइंग ब्रांचेज दैट इज रिप्रेजेंट बाय द इनपुट नोड. तो यहां से केवल आउट गोइंग ब्रांचेज है, तो x1 x2 x3 क्या है, इनपुट नोड है. जहां पे केवल इनकमिंग ब्रांचेज है उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट नोड. क्लियर, और इसको क्या बोलेंगे, मिक्स नोड बोलेंगे. ठीक है, सब डिफिनेशन थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा इसको वो नहीं देना है. ठीक है, यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, नोड वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ द इनकमिंग ब्रांचेस नॉट इफेक्ट बाय द आउट गोइंग ब्रांचेज. जैसे मैं यहाँ पे जो भी लिखा हुआ x6 लिखा हुआ, तो x6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, g1 x1 प्लस g2 x2 प्लस g3 x3. हमें आउट गोइंग ब्रांचेस से कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन इज द फॉरवर्ड पाथ. A forward path is the path from input node to input node means source to output node and does not cross any node or branch more than once. Means फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, इनपुट से आउटपुट जाएंगे और कोई भी नोड जो है 2 टाइम्स रिपीट नहीं होना चाहिए. 2 टाइम्स मीन्स एक से ज्यादा बार नहीं होना चाहिए. दैट इज रिप्रेजेंट बाय द फॉरवर्ड पाथ. और उसका गेन क्या होगा, सारे जो गेन यहाँ पे G1 G2 मिलेंगे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट इज डिफाइंड बाय द फॉरवर्ड पाथ गेन. क्लियर. नेक्स्ट वन इज लूप. लूप इज क्लोज पाथ विथ नो नोड और ब्रांच रिपीटेड मोर देन वंस. मीन्स कोई भी नोड एक से बाद जो है रिपीट नहीं करना चाहिए. मीन्स जहां से स्टार्ट होगा उसी पे क्या होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए. क्लियर. दिस वन इज लूप. एंड लूप गेन क्या होगा, गेन को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, लूप गेन हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा, जैसे यहां पे हम बात करें सेल्फ लूप, पीसी को कहते हैं. ये क्या है, सेल्फ लूप है. ठीक है, तो यहां पे देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, यहां पे फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, एक फॉरवर्ड पाथ ये. ठीक है, एक फॉरवर्ड पाथ, ये वाला पाथ क्या है, फॉरवर्ड पाथ. सेकंड फॉरवर्ड पाथ ये वाला है, ऐसे क्या, ये भी सेकंड फॉरवर्ड पाथ है. हम रिवर्स डायरेक्शन में एरो के नहीं जा सकते. लूप कितने यहाँ पे, एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया. ठीक है, क्लियर है. ओके. 2 नॉन टचिंग लूप की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों लूप क्या एक भी नोड शेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 नॉन टचिंग लूप. क्लियर. गेन ऑफ द 2 नॉन टचिंग लूप, गेन ऑफ द 2 नॉन टचिंग लूप मीन्स क्या कर देंगे, इसका गेन मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, H1 S3 हो जाएगा. ठीक है, ये सब चीजें हैं यहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा सा एक एक बेसिक से डिस्कस करता जा रहा हूं एक एक चीज यहाँ पे. ठीक है, जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया, ये इनपुट नोड x1 है, दिस इज x, वो आउटपुट नोड y है एंड G1. हमें बता दो, हमने क्या इनपुट नोड की डिफिनेशन क्या बताई थी, जहां से केवल हमेशा क्या हो, आउट गोइंग ब्रांचेज हो. बट यहाँ पे क्या एक ब्रांचेज है, इनकमिंग, तो दिस वन इज नॉट वर्क एज ए इनपुट नोड. तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये सब चीजें डिस्कस होंगे एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट. ठीक है, अब हम थोड़ा देखते हैं मेसान गेन फार्मूला. मेसान गेन फार्मूला दैट इज व्हाट, मेसान गेन फार्मूला इक्वल्स टू P1 del 1 P2 del 2 अपॉन डेल. यहां से और इंक्रीज होगा तो डेल इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस सम ऑफ इनिशियल लूप गेन
and sum of gain product of 2 non-touching loop plus again minus sum of gain product of 3 non-touching loop plus again sum of gain product of what 4 non-touching loop. जो क्वेश्चन आएगा जनरली यहीं तक आया हुआ है अभी तक, ठीक है. ओके, अब कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं. सपोज दिस इज x1, दिस इज g1, x2 node, and suppose gain is 1 here and this is output y here. Okay, then how we can write here? x1 is what? x1 equals to what? यहाँ पे क्या इनपुट नोड हो सकता है? यहाँ पे नहीं हो सकता ना. यहाँ पे कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3, कुछ भी इसका गेन ले लेंगे. ये इनपुट नहीं, बिकॉज क्या है यहाँ पे, यहाँ इनपुट नोड मीन्स केवल आउट गोइंग ब्रांच है, जो यहाँ पे क्या हो इनकमिंग हो रही है. ठीक है, तो मैं सपोज यहाँ पे 2 ले लो तो क्या हो जाएगा, 2x1 क्या सेटिस्फाई करेगा इसको? नहीं कर सकता ना. यहाँ पे ऐसा कभी नहीं कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि x1 इक्वल्स टू 2x1. ठीक है, तो एक के लिए नहीं करेगा तो किसी के लिए भी हम इसको फुलफिल नहीं होने देंगे. ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे x2 इक्वल्स टू क्या हो सकता है, एक तो ब्रांच ये आ रही है तो क्या लिखेंगे, g1 x1 प्लस x2. क्या x2 एंड x2 समथिंग वी आर एडिंग, अगेन वी आर गेटिंग द x2. ये भी इक्वेशन क्या है, इनवैलिड है. तो हम एसएफजी में जब भी जो है लूप गेन 1 दिया रहेगा तो इसको क्या मानेंगे, इनवैलिड लूप. ठीक है, इसको रिमूव कर देंगे. ठीक है, इनपुट में भी कोई दिया रहेगा तो उसको भी क्या मानेंगे, इनवैलिड. जैसे मैं क्वेश्चन दे दूं यहाँ पे 1 and this one is 5 and this one is 6 and c and r, then direct what is the closed loop transfer function c by r? डायरेक्ट वी कैन राइट हियर, ये भी क्या इनवैलिड हो गया, ये भी इनवैलिड हो गया. डायरेक्ट वी कैन राइट हियर 6 मीन्स व्हाट वी कैन राइट, c इक्वल्स टू r इंटू 6, देन c बाई r इक्वल्स टू 6 हियर. क्लियर. नेक्स्ट, अब अच्छा तो कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं, उसके बाद जो हम आएंगे कि कैसे जो है शॉर्टकट अप्रोच हम लगाएंगे यहाँ पे. ठीक है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ हियर. फॉरवर्ड पाथ की बात करेंगे तो कितने फॉरवर्ड पाथ आएंगे यहाँ पे. पहला देखते हैं, एक फॉरवर्ड पाथ है 1, 2 एंड 3. क्लियर. नेक्स्ट वन इज व्हाट, 1, 2, 8, 5, 6. क्या हो गया, फॉरवर्ड पाथ की बात करें तो 1, 2 एंड 3. सेकेंड फॉरवर्ड पाथ क्या हो जाएगा, 1, 2, 8, 5, 6. सेकेंड फॉरवर्ड पाथ अगेन 4, 5, 6, 4, 5, 6. क्लियर. अगेन फॉरवर्ड पाथ 4, 5, this one is 7, 2 and 3. Number of forward path is what, 4 here. Number of loops here, number of loops you can say here, this one is one loop, means loop is what, 2, 9 is the loop. Second loop, that is 5 and 10 here. Again loop, this one is what, we can say here 2, 8, 5, 7. 2, 8, 5, 7. Clear. Next loop और कोई नहीं, that is loop is 3 here. Okay. Again number of 2 non touching loop, number of 2 non touching loop कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 9, this loop and this loop, that is and 5 and 10. 2 non touching loop आ जाएंगे यहाँ पे. क्लियर है. ठीक है, और क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक चल रहा है इसमें. ओके, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, number of forward path means how many forward path here, means we can go like that. First one is 1, ऐसे में गया. ठीक है, एक फॉरवर्ड पाथ. सेकंड फॉरवर्ड पाथ 7, 3, 10. 7, 3, 10. सेकंड फॉरवर्ड पाथ हो गया. अगेन कौन सा हो सकता है फॉरवर्ड पाथ, 7, 8, 5, 9, 10. How many forward path? There is 3 forward path. Number of loops here. Number of loops. First loop is 1 and 2. 1 and 2. Second loop is 3 and 4. Again 5 and 6. Clear?
अगेन लूप, यहां पे एक लूप बनेगा कौन सा, 1, सॉरी ऐसा कुछ बनेगा 7 3 10 2, 7 3 10 2, 7 3 10 2, एक लूप ये हो जाएगा। नेक्स्ट लूप कौन सा होगा, 8 5 9 4, 8 5 9 4, क्लियर। नेक्स्ट और कौन सा लूप बनेगा, एक 7 8 5 9 10 2, एक बड़ा सा लूप बनेगा, मीन्स देयर इज व्हाट, कितने हो गए, 6 हो गए। तो एक लास्ट वाला बनेगा क्या, 7 8 व्हाट 5 9 10 एंड 2, ठीक है। तो इसको देख लेना, मैच करा लेना, ठीक है। नंबर ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, नंबर ऑफ टू नॉन टचिंग लूप कौन कौन से हो जाएंगे उसको देखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जनरली इसमें मैं स्टूडेंट को देखा हूँ, ऑफलाइन में मैं जब क्लास लेता हूँ तो जनरली स्टूडेंट इसी में मिस्टेक करते हैं, टू नॉन टचिंग लूप में। तो देखते हैं कौन कौन से हैं टू नॉन टचिंग लूप, कौन कौन से हैं। पहला कौन सा हो गया, 1 2 एंड नेक्स्ट 3 4, 1 2 एंड 5 6, अगेन 3 4 एंड 5 6, कितने हो गए, 1 2 एंड 3, अगेन एक बना लूं मैं कौन सा, 1 7, ये और 7 3 10 2, 7 3 10 2, अगेन दिस वन इज 5 एंड 6 हो गए, क्लियर। अगेन कौन कौन सा हो सकता है, और कौन सा लूप हो सकता है, 3 4 एंड 5 6 हो चुका है, कितने हो गए, 1 2 3 4, और कौन सा बन सकता है, यहां पे देखते हैं थोड़ा सा, 1 2, यहां पे कौन हो चुका है, 5 6 और 7 3 2, एक और हो सकता है ना यहाँ पे, 1 2, अगेन 8 5 4 8 5 9 4, ये वाला, ठीक है। एक इसके साथ बनेगा तो कितने हो गए, टोटल 5 हो गए। 3 नॉन टचिंग लूप, एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया, मीन्स 1 हो गया, ठीक है। ओके, as I've just shown in figure, if A equals to what TB, then where T is equals to, okay, we have to find here T. First one is, we can write here what, this one is output and this one is input. Why I am saying that this one is the output, because output node means what, where incoming branches only, and input node means what, only outgoing branches, okay. A by B means T equals to what, A by B means what, we have to find the closed loop transfer function here, okay. Either we can apply the Masson gain formula, or we can find here directly. How we can find here, we can write here, there is the two signal come here, that is first one is A equals to what, 5B, and next this one is the point 5A. Then how we can write here, this one is what, if I take A common here, 1 minus 1 by 2, that is equals to 5B. Then A by B equals to what, 5 upon 1 by 2, that is equals to what, 10. या हमने क्या किया, यहाँ पे सिग्नल फ्लो ग्राफ का यूज किया, बट मेसन गेन फार्मूला हम यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ P1, दैट इज व्हाट, गेन इज 5, फॉरवर्ड पाथ गेन इज 5, del 1 is 1 minus a loop which is not touch the first forward path, कोई भी ऐसा लूप 0, that is equals to 1. Next del equals to 1 minus sum of individual loop gain, means that is what, 1 by 2 here. Then again we can write here 1 by 2. Then closed loop transfer function, that is equals to P1 del 1 upon del. Then what we can write, 5 upon 1 by 2, that is equals to, again we are getting the 10, means answer D is correct here, okay. Next question, we have to find here closed loop transfer function C by R here. How we can find the closed loop transfer function C by R? First, यहां से नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितना हो जाएगा, P1, फॉरवर्ड पाथ गेन A C D, क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड फॉरवर्ड पाथ गेन, दैट इज D E F, अगेन del 1
वन माइनस अ लूप विच इज नॉट टच द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को ये वाला लूप टच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे ई एच। अगेन del 2 इक्वल्स टू वन माइनस अ लूप विच इज नॉट टच द सेकंड फॉरवर्ड पाथ, दैट इज दिस वन जी एंड सी हियर, ओके। Again, what about del 1 minus sum of individual loop gain GC plus EH, clear, and plus product of what? Two non-touching loop. Sum of product of two non-touching loop. This loop is, ये loop touch कर रहा है क्या? इससे नहीं कर रहा है, तो क्या लिख देंगे? प्रोडक्ट लिख देंगे, तो GCEH। ये सब एक्चुअली सबको आइडिया होता है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा है, ठीक है। जो मेन मेरा मोटिव है, कैसे हम डायरेक्ट क्लोज्ड ट्रांसफर फंक्शन हम फाइंड आउट करेंगे विदाउट रिडक्शन द ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुका है, तो इसमें क्या लिखेंगे? क्लोज्ड ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज्ड ट्रांसफर फंक्शन इक्वल्स टू P1 del 1 ACD, नेक्स्ट 1 माइनस EH, अगेन DEF 1 माइनस GC एंड 1 माइनस GC 1 माइनस EH प्लस GCEH here, clear। इफ आई टेक कॉमन ईयर EH, देन यहां से कॉमन लेंगे, तो इसको मैं बात कर रहा हूं डिनोमिनेटर पार्ट की, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस GC, यहां से EH कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस EH, और यहां से 1 माइनस GC, तो इसका ये क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। यहां से थोड़ा डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ACD अपॉन 1 माइनस EH, ठीक है। सो इसमें डिवाइड हो जाएगा ना, तो यहां से 1 माइनस GC यहाँ पे होगा GC प्लस नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा DEF अपॉन व्हाट 1 माइनस EH, ये कैंसिल हो जाएगा इससे GC 1 माइनस GC से, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? दिस वन इज वैलिड फॉर लिनियर, देन व्हाट वी कैन अप्लाई हियर? वी कैन अप्लाई हियर सुपरपोजिशन थ्योरम। तो क्या करेंगे, जब भी ऐसा कई सारे कनेक्टेड हो ऐसे पैरेलली, तो क्या करें, एक एक का इंडिविजुअल निकाल के लास्ट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। देखो इसका क्या आ जाएगा ट्रांसफर फंक्शन, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो ये आएगा, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा? इंडिविजुअल का निकाल के उसको सबको क्या कर देंगे? एक साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। कई सारे भी दिया हूं ऐसे पैरेलल, तभी सबका निकाल के उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, इसकी बात करेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड पाथ P1 इक्वल्स टू व्हाट 2 into 3 into 4 फॉरवर्ड पाथ गेन, okay, that is equals to 24. Second forward path P2 equals to what? Second forward path is what? This one is the second forward path, means 5. Next, what is del 1? 1 minus sum of individual loop gain which is not touch the first forward path. First forward path को कौन सा ऐसा लूप है जो टच नहीं कर रहा है? कोई भी नहीं है, 0 means 1 here. Del 2 equals to 1 minus sum of individual loop gain which is not touch the second forward path. इस सेकंड फॉरवर्ड पाथ को कौन सा लूप? ये वाला टच कर रहा है, नोट शेयर कर रहा है, ये भी शेयर कर रहा है। ये वाले लूप की बात करेंगे, दैट इज -3, मीन्स वी कैन से हियर 4। व्हाट अबाउट डेल 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन -2 -3 -4। नेक्स्ट लूप इज व्हाट? नेक्स्ट लूप इज दिस वन इज 5 -1, ये वाले लूप क्या हो जाएंगे? तो वी कैन राइट हियर व्हाट -5 प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, ये वाला लूप क्या है 1 and 2, दिस वन इज नॉन टचिंग लूप, वी कैन राइट हियर व्हाट 8 हियर। देन इफ आई राइट क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन इक्वल्स टू C by R, or we can say R by C here, then P1 del 1 that is 24 plus P2 del 2 that is 20 upon what? This one is 1 plus something, that is 3 to 5 5 plus 10 plus 14 plus 8, okay. Then 15, that is what 44 upon 23 is correct answer। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए करा रहा हूँ कि जब एग्जाम में आया था जनरली स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिस्टेक किया था इसमें, ये कंसिडर नहीं कर पाए थे, किसी का इसमें डाउट हो गया था, इसमें प्रॉब्लम हो गई थी, कोई ये वाला कंसिडर नहीं किया था, ऐसा वाला लार्ज वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन जो है लास्ट में प्रैक्टिस करके जाने हैं, ठीक है। ओके